السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل راجپوت کلچر ڈے، اور آج ہم یہاں لوگوں سے ملیں گے اور ان کے کیا عوام کے لیے میسیج ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میرا نام رانا ذوالفقار احمد ہے، میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں۔ میرا عہدہ تحصیل صدر کا ہے، تحصیل شوہپورہ کا، اور میرے ساتھ میرے چیئرمین ہیں جو ہمارے سرپرست بھی ہیں، رانا اکرم صاحب، اور ہم ادھر ہر ماہانہ میٹنگ کرتے ہیں راجپوتوں پورے ضلع کی۔ کس جگہ؟ شوہپورہ میں۔ شوہپورہ میں۔ شیخوپورہ کس جگہ؟ سٹی؟ چراغ پیلس میں، سٹی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کافی راجپوت ادھر اکٹھے ہوتے ہیں ہماری، اور انشاءاللہ ان قریب ہم اپنا ذاتی دفتر لیں گے انجمن راجپوتوں کے نام سے، جو ہمارا سب کا متفرق فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے گا۔ جی رانا اکرم، چیئرمین ضلع شوہپورہ انجمن راجپوتاں، اور جو آج راجپوت انٹرنیشنل کلچر ڈے سے حوالے سے یہ پروگرام انہوں نے شروع کیا رہا خالد احمد صاحب نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب تحصیلوں سے، سب ضلع سے لوگ تشریف لائے، اور یہ پروگرام نئی نسل کے لیے، نوجوان جو ہے اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں، سارے دوست اس میں شامل ہوں اور اس کو زیادہ جو ہے لوگوں کی خدمت کریں۔ تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، اور شوہپورے جو ہے ہم کافی کام کر رہے ہیں، اور پورے ضلع کو دعوت ہے وہ تشریف لائیں جی۔ تو خالد محمود رانا جی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری راجپوت سپریم کونسل پنجاب ہوں، اور راجپوت سپریم کونسل منصورہ بازار کا بھی میں جنرل سیکرٹری ہوں، اور وہ ہمیشہ سے کام کر رہا ہوں، اور میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اپنے بھائی خالد عظمت کو، جو کہ ہر سال ہی یہ 5 اپنا اپریل کو مناتے ہیں، اور پھر یہ 1 چیت کو دوبارہ یہ ہم نے کیا ہے راجپوت کلچر ڈے، اور ماشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے یہ مناتے ہیں۔ پچھلے سال بھی بڑی دھوم دھام سے منایا تھا، آؤٹ ڈور ہوا تھا سارا وہ، تو اس سال بھی یہ ارینج کیا ہے راجپوت سپریم کونسل انٹرنیشنل نے، تو ہم ان کو بھی آشیرواد دیتے ہیں، جو ہماری زبان میں ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ تمام راجپوت برادری مل کے نا اس دن کو مناتی رہے۔ میرا نام رانا محمد صدیق خان ہے۔ ہم آج 14 مارچ کو کلچر ڈے کے حوالے سے سب راجپوت اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں تمام راجپوتوں کو اس میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ چلیں، سارے اکٹھے ہوں، اور اس ڈے کو بڑے بھرپور طریقے سے ہم منائیں، اور جو راجپوتوں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام ہے وہ ہم مل جل کے سارے اکٹھے ہو کے کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا، تو ہمیں تمام مل جل کے چلنا چاہیے، اور تمام راجپوتوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا راجپوت ایک قوم، ایک بہادر قبیلہ ہے، تاکہ ہم اچھے کام کریں گے تو لوگ انشاءاللہ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ ہمارا جو یہ آج کا دن ہے نا جی، یہ ہم اپنے اس میں ہم اپنے راجپوتوں کے کلچر ڈے کو یادگار کے طور پر منانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ چیز بھول نہ جائیں ہم کہ ہم راجپوت ہیں۔ تو راجپوتوں کو اپنے اس میں ہم ہمیشہ ہی یہ تنظیم پہلے بنتی ہے، تنظیم بننے کے بعد پھر یہ کرنا کیا ہے، پھر کرنا کیسے ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو اس میں ہم جو ہے نا جی، ہم نے اپنے پروگراموں میں تعلیم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تعلیم کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اپنے کلچر کو نہیں بھول سکتے، جیسے کہ کسی کو اپنے قائد کو نہیں بھولنا چاہیے نا۔ اب اگر ہم اپنے پاکستان کے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھول جائیں تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اب ایسے ہے نا کہ مسلمان اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو ہدایات ہیں ان کو بھول جائے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے ہم نے یہ کلچر ڈے جو ہے نا یہ منانے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہمیں ہماری ایک ریویژن ہو جاتی ہے، یاد تازہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ میرا نام رانا محمد نعیم خان ہے، اور میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں اس پروگرام میں شرکت کے لیے، اور صرف اس لیے یہاں پہ میں نے فیس بک پہ پڑھا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلچر ڈے ہے یہ کس طرح منایا جاتا ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بڑا ماشاءاللہ اچھا پروگرام کر رہے ہیں کہ جو راجپوتوں کا کلچر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا قدم ہے، اور میں انتظامیہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ اسی طرح پروگرام کرواتے رہیں گے، تاکہ راجپوتوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کی تاریخ کیا ہے،
जिन्होंने बर सग़ीर में सदियों हुकूमत की हैं राजाओं की सूरत में, आज वो अपनी नाइतफाक़ी और इत्तेहाद ना होने की वजह से दूसरी कौमों से जो है ना वो तकरीबन वो नीचे जा रहे हैं। इसलिए ये आज मुझे उम्मीद है कि ये कल्चर डे मनाने से इंशाल्लाह जो राजपूत हैं जो देखेंगे इस वीडियो को देखेंगे वो इंशाल्लाह इससे ज़रूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। इंटरनेशनल राजपूत कल्चर डे है, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं और क्या आपके आज के इस मौजू पे आवाम से? बिल्कुल जी, आज कल्चर डे के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं कराची से आया हूँ जी, और मेरा बड़ा शौक़ था अपनी बरादरी के इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आज यहाँ पर मैं शामिल हूँ जहाँ पर हमारी राजपूत कम्युनिटी की तकरीबन जितने भी गोते हैं उनके कैंडिडेट मौजूद हैं यहाँ पर। और जहाँ तक हमारी राजपूत बरादरी का ताल्लुक़ है, राजपूत बरादरी को एक होना चाहिए, इसकी जितनी भी गोते हैं इनको भी एक होना चाहिए, और हमें मिलकर चलना चाहिए अपने वतन पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, दीन इस्लाम के लिए। और हमें फ़िरका वारी से भी बचना चाहिए, क्योंकि फ़िरका वारी जो है ये सबसे बड़ा शर है हमारे यहाँ पर। क्योंकि पहले फ़िरके नहीं होते थे, जब फ़िरके नहीं थे तो बड़ा इत्तेफाक था, मोहब्बती लोगों में। जब से ये फ़िरकों का सिलसिला चला, ये चलना भी है, ज़ाहिर है ये हुक्म है। तो इस हवाले से, और बच्चों के जहाँ तक है, हमें अपने बच्चों को फेयरनेस देनी चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, वो पढ़ लिख कर हमारे माशरे का नाम रोशन करें, अपनी बरादरी राजपूत कम्युनिटी का नाम रोशन करें। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजपूतों की तारीख़ है, आप आज से नहीं, ये बहुत पुरानी तारीख़ है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े जंगजू लोग हैं, बड़े दिलेर लोग हैं, और उनका एक नाम है, एक सिस्टम है। लेकिन इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुत्तहिद होकर हमें काम करना पड़ेगा अपनी बरादरी के लिए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया से लेकर पाकिस्तान, दुनिया के अंदर हमारी राजपूत कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन हमें इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। राना मोहम्मद हुसैन जी फ्राम शेखुपुरा। ठीक, तो आज राजपूत इंटरनेशनल कल्चर डे के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारा पैगाम यही है कि बड़ी खुशी हुई है वैसे, और ऐसे होना चाहिए, सालाना अपना ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। इसमें एक दूसरे की बरादरीज़म के हवाले से भी और हर तरह के हवाले से भी एक से मुलाकात में भी बड़ा एक दूसरे को पैगाम जाता है। तो ऐसे पैगाम सालाना इंतज़ाम होने चाहिए राजपूतों के। बाल साहब, आज राजपूत इंटरनेशनल कल्चर डे के हवाले से आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी, ये बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया है राजपूत सुप्रीम काउंसिल ने और राव तारिक शफाक साहब ने। हम तकरीबन 8, 10, 15 तंजीमों के लोग इधर जो सरबराहान हैं वो सारे तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो ये एक यूनिटी की मिसाल है, यकजहती की मिसाल है, और इसी तरह ऐसे प्रोग्राम इवेंट होते रहेंगे किसी भी याद के हवाले से, तो फिर ही जज्बा पैदा होगा कि हम अपनी बरादरी की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकते हैं, उनकी वेलफेयर का कोई काम कर सकते हैं, या जो हमारी बरादरी के अंदर यतीम बच्चे हैं उनका भलाई के लिए कुछ सोच सकते हैं, बेवा ख़वातीन के लिए कुछ सोच सकते हैं, जो गरीब घरों के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं जिनके पास वो ट्यूशन का कोई बंदोबस्त नहीं है, बेहतर हम उनके लिए वसाइल को बुरुएकार ला सकते हैं, उनकी ट्यूशन पे कर सकते हैं। जैसे ये है कि अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है राजपूतों का। चलें, देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर से ये सिस्टम शुरू हुआ और इसमें मेरा ख़्याल है ज़्यादा दूसरी बरादरी जो हैं उनको देखकर ही हमें भी, हमारी भी जो नींद थी वो खुली है, आंखें खुली हैं कि हम मतसब किस्म की बरादरी कुछ है ना, तो उनकी तरफ से देख के हम बहुत पीछे थे। लेग पुलिंग में हम आगे थे, तो वेलफेयर के कामों में पीछे थे। हर आदमी इधर चौधरी है राजपूतों के अंदर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उसके शाना बशाना काम करना चाहिए। मेरा नाम पूरा राना ज़ाहिद इकबाल नारू है, मैं सूबाई सदर पंजाब हूँ, आल राजपूत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान इंटरनेशनल। मैं राव तारिक अशफाक राजपूत सुप्रीम काउंसिल का मरकज़ी सदर। आज 14 मार्च यकुम चीत, ये हम हर साल इस मुल्क के बल्कि सारी दुनिया के राजपूत 14 मार्च यकुम चीत को राजपूत डे बनाते हैं। और ये राजपूत डे बनाने का मकसद वाहिद यही है कि एक तो राजपूतों की यकजहती और हमारे पुरानी जो ट्रेडिशंस चली आ रही हैं उनको
उन पे अमल पैरा होते हुए उनको अपने बाकी राजपूतों में उसकी शनाख्त कराने के लिए हम लोग इस दिन को पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में और जहाँ जहाँ इस दुनिया में राजपूत हैं वो इसको बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं और उसके लिए हमारी मुख्तलिफ़ तकरीबात मुनक़्क़िद होती हैं। तो आज के दिन मैं अपनी बिरादरी को, राजपूतों को, सबको तमाम राजपूतों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस दिन को मनाने के लिए सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि इसको पुरजोश तरीके से मनाएं। यकम चेत का जो फंक्शन मनाया हम बहुत खुश हैं और इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये फंक्शन ऐसा यूनिटी का होना चाहिए और हर लम्हे होना चाहिए और ये इत्तेहाद रहना चाहिए और एक जगह पे ये प्लेटफार्म पे हमको इकट्ठा होना चाहिए। एसोसिएशन है, इसका मकसद सिर्फ बिरादरी की वेलफेयर है। गरीब बच्चों को वज़ाइफ देते हैं हम, तालीमी वज़ाइफ, गरीब बच्चियों की शादी के लिए जहेज देते हैं और जितना भी मुमकिन हो सरकारी महकमा जाल में जहाँ भी किसी कोई काम पा गया, जहाँ भी राजपूत हो उससे जाकर ज़रूर दरख्वास्त करते हैं, वो काम भी आते हैं। राना बशीर साहब से बहुत पुराना तल्लक है, मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सुप्रीम काउंसिल के, ये भी पहले राजपूत बच्चे एसोसिएशन में ही होते थे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये हर साल राजपूतों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठ जो होता है वो ही एक यूनिटी होती है जिससे पता चलता है ये कौम कितनी मुतहद है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ तारक साहब को भी कि हर साल ये यकम चेत को इनकार करते हैं राजपूत कल्चर डे का। तो हम भी हाजिर होते हैं, हर दफ़ा होते हैं। हमारी दुआ है कि इसी तरह राजपूत बिरादरी फलती फूलती रहे, एक दूसरे से ताउन करें, इस आगे यकजहती करें। गुलाम मुर्तज़ा राना जी, आज राजपूत इंटरनेशनल कल्चर डे है, तो इसका क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अवाम को? असल में जी हमारी ये राजपूत जो कम्युनिटी है ना जी, हमने बहुत अरसे से जब से ये हम लोग मर्द वजूद में है ना जी, हम ये देसी महीने के हिसाब से करते हैं। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के, पूरे इंटरनेशनली राजपूत बरादरी जहाँ पे भी है ना, हम ना अपना एक डे हमने कोई चंद साल पहले अनाउंस किया था। तो आज जो है 14 मार्च 2022 है, तो ये देसी महीने के हिसाब से रकम चेत है ये, जिसमें हम कोशिश हमारी यही है कि राजपूत बरादरी जहाँ कहीं भी हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए। हमारा मेन जो काज है ना जी, हम अपनी बरादरी के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। मैं अंजुमन फलाह राजपूत पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ जी। हमारे पाकिस्तान में सबसे पुरानी तंजीम है, 1971 में ये बनी थी जी। मेरे वालिद ग्रामी गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, मेरे नाना पूते चौधरी अब्दुल खान साहब, राणा फूल साहब थे और बहुत से मोअज़्ज़ीन अल्लाह ताला उन्हें जवारे नेमत में जगह था हमारी। तो हमारी सबसे पुरानी तंजीम जो हमारी है अंजुमन फलाह राजपूत, ये भी हमारी है। राव खालिद अजमत साहब माशाल्लाह बड़े अरसे से बड़े दीदा दिलेर आदमी है। तो राजपूतों का स्पेशल उनके जो दिल में दर्द है ना जी, हमसे भी ज़्यादा है। आज के दिन के हवाले से हम जो है राव खालिद अजमत, राव तारक साहब को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने तमाम दोस्तों से मुलाकात का मौका दिया। इस तरह तमाम राजपूत तंजीमों की नुमाइंदगी भी हो रही है और राजपूतों की वेलफेयर के लिए भी जो है ना वो कोशिश हैं। हम दोबारा उनके मशकूर हैं कि उन्हें जो है हमें यहाँ इकट्ठे होने का मौका दिया। आज राजपूत इंटरनेशनल कल्चर डे है, तो इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे आप अवाम को? अवाम को और पाकिस्तानी अवाम के लिए तो ये पैगाम है कि अमन और सलामती की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा मैं PMLN से हूँ, MPA। राजपूतों में हम में इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन सब तंजीमों को यकजा होना चाहिए कि जब कोई, जैसे अब आज 14 है, 14 मार्च के हवाले से आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बकरमी कैलेंडर इस दिन आज़ाद हुआ था और उस कैलेंडर की वजह से हमने इस दिन को चूज़ किया। तो हमारी तमाम राजपूत तंजीमों से रिक्वेस्ट है मेरी एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र कि भी आप सब लोग मिलकर बैठे, इकट्ठे बैठे। भला आप तंजीम अपनी अलग-अलग नाम से आपने रखी हुई है, क्योंकि नाम हैं तो हम सब राजपूत, तो हम सबको मुत्तहद होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए
और अगर हम इकट्ठे होंगे एक जगह इत्तेफाक से बैठेंगे, तंजीमें सब मिलकर किसी बात को भी डिस्कस करेंगी तो उसका रिज़ल्ट बेहतर निकलेगा। और हम सबको अपनी बरादरी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा नाम राना मोहम्मद आफ्ताब है, अंजुमन राजपूत फलाह बहबूद राजपूतना पंजाब का मैं चेयरमैन हूँ। ठीक है, तो आज का राजपूत इंटरनेशनल कल्चरल डे के वाले से क्या आपका मैसेज है लोगों के लिए? मेरा मैसेज ये है कि यकम चेत को हम ये राजपूत कल्चर डे मनाते हैं। अपने दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवानों को मेरा ये पैगाम है, इस अपना कल्चर को जोश खरोश से मनाएं ताकि हमारे आने वाले बच्चों को उनका पता चले और ये एक दूसरे को तोहफे ताइफ दें और केक अपने घरों में काटें और आपस में मिलजुल कर इसको मनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ ख़ान। आज राजपूत इंटरनेशनल कल्चरल डे है, तो इसके हवाले से आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने राजपूत भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि राजपूत डे जो आज हम 14 मार्च यकम चेत को हर साल पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं, इसको अपने असलाफ़ के याद के लिए, अपनी कौम की शानदार रवायात के लिए इसको भरपूर तरीके से मनाया जाए और अपनी उस शानदार रवायात को बरकरार रखते हुए पूरी दुनिया में जो राजपूत कौम है उनकी जो रवायात हैं उनको उजागर किया जाए। सर आपका नाम? राना बशीर अहमद। आज का आपका राजपूत इंटरनेशनल कल्चर डे के हवाले से क्या मैसेज है लोगों के लिए? जी, आज का दिन ये हम यकम चेत 14 मार्च को हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक में तकरीबात मुनक़्क़द करते हैं, जिसमें हम अपने राजपूत कौम के कल्चर को, अपनी सकाफ़तों को, अपनी कदरों को नई नस्ल से मुतारफ़ करवाते हैं और अपनी रवायत को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिला में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम तहसीलों में, तमाम सिटीज़ में और बिलखसूस इंडिया में भी राजपूत सुप्रीम कौंसिल की जो हमारी बॉडीज़ हैं वो आज के दिन राजपूत कल्चर मेले के नाम पे राजपूत तकरीबात मुनक़्क़द करती है और केक काटे जाते हैं। अभी इस तकरीब के बाद हमारा लाहौर में ही कालाख्ताई मोड़ पे राजपूत कल्चर मेला हो रहा है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम कल्चर को, जिसमें तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, आतिशबाजी और घोड़सवारी का मुकाबला भी करवाएंगे। ये हमने यकम चेत इसलिए रखा है कि इसमी कैलेंडर और इस्लामी कैलेंडर जो जनवरी फरवरी वाला और मुहर्रम वाला इस्लामी, उससे पहले जो बिक्रमी कैलेंडर था ये राजपूत राजा बिक्रमाजीत ने बनाया था और ये यकम चेत फग्गान अस्सू कत्ता, जिसको हम देसी महीने भी कहते हैं, ये हमें फ़ख्र है कि ये हमारे राजपूत हुक्मरान ने बनाया था और महीनों और दिनों को तकसीम किया था।